So good evening friends. Today I am going to upload class 10th chapter number 4 in chemistry. The chapter name is carbon and its compounds. Now it is the start, it is the beginning of organic chemistry. So first you will now learn about organic chemistry. So the question is, what is organic chemistry? The answer is, organic chemistry is basically the study of carbon and its compound and its property. So we will discuss in organic chemistry, we will discuss the carbon and its compound and its property. So here it is the start of organic chemistry. So how? The first question is, how carbon came in the universe? The answer lies on the fact of the Big Bang theory. Due to the Big Bang theory, the helium nuclei, lighter nuclei combine to form the carbon nucleus. So carbon comes with the help of Big Bang theory in the universe. Now the question is, now we will discuss some properties of carbon. The element carbon is a non-metal. Carbon एक non-metal है. Its symbol is C. How we denote carbon? By writing C. It is the symbol of carbon. The atomic number of carbon is 6. And with the help of electronic configuration, this is the electronic configuration of carbon. 2 and 4. Carbon has atomic number 6. So carbon electronic configuration is 2 and 4. It has 4 valence electron. So it can come into the category of non-metal. So how can we define metal and non-metal? Metal is an element which has 1, 2, 3 valence electron, while non-metal is an element which has 4, 5, 6, 7, 8 valence electron. So carbon is a non-metal. Now we will discuss about the nature of bond formed by the carbon. Before discussing the nature of bond formed by the carbon, either forms ionic bond or covalent bond. So before discussing the bond formed by carbon, we must know the term chemical bond. So what is chemical bond? A chemical bond is like a glue. जैसे गोंद से दो पेपर को चिपकाते हैं ना, उसी तरह बॉन्ड है, दो एलिमेंट कंबाइन करता है. Why element combine? The question here is why element combine. So by the definition of great scientist G.L. Lewis said that element combine to form its octet. Element form its octet to become stable. Elements combine and form bound. एलिमेंट कंबाइन करता है और क्या बनाता है? बॉन्ड. बाउंड एक तरह का गम होता है. कैसे? अगर केमिकल बाउंड नहीं होता तो आज ना तो वाटर होता ना तो एयर होता, बिकॉज वाटर इज H2O. H2O कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन किया? विद द हेल्प ऑफ केमिकल बाउंड. तो अगर केमिकल बाउंड का उस समय इन्वेंशन नहीं होता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करके ना वाटर बनाता ना एयर बनाता. वी हैव नो वाटर टू ड्रिंक, वी हैव नो एयर टू ब्रीथ, we have no soil, we have nothing, we have no universe. So due to chemical bound our universe exists. And the chemical bound एक तरह का ऐसा है जिससे एलिमेंट कंबाइन करता है, जिसके तहत, और there are 3 types of chemical bound. The first one is ionic bound, second one is covalent bound, third is coordinate bound. Now we will discuss ionic bound and how ionic bound is formed. So let us focus on board. बच्ची को कहिएगा देखे कि उससे पढ़ेगी और कोई दिक्कत है ना? हाँ नहीं ठीक है. और घर में ही रहने के लिए कहिए, घर में भी सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और बच्ची को कहिए घर में पढ़ाई करेगी यूट्यूब पे चैनल सर्च करके. ठीक, आपको बात करवाइएगा. ठीक. So the first fact is the ionic bond is formed due to the transfer of electron. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण आयनिक बाउंड बनता है. जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. Now take chlorine. The atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration is 2, 8 and 7. तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, we can see here that the valence electron of sodium is 1 while the valence electron of chlorine is 7. So sodium come into the category of metal and chlorine come into the category of non-metal. Metal and non-metal का definition हम लोगों ने discuss कर लिया है. Metal is an element which has 1, 2 or 3 valence electron while non-metal is an element which has 4, 5, 6, 7, 8 valence electron. तो sodium is a metal. अब क्या होता है? आयनिक बाउंड
फॉर्मेशन के समय सोडियम अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को डोनेट करता है। सोडियम इज अ डोनर व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड इसीलिए बनता है कि सोडियम को भी अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, क्लोरीन को भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बनाना है। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए सोडियम अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम प्लस बनता है, क्योंकि वो आइटम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इन दिस एग्जांपल सोडियम इज अ डोनर, इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन सोडियम इज 1. Why 1? Because sodium donates its 1 electron. To whom it donates its electron? It donates its electron to chlorine. वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। क्लोरीन को इसीलिए इलेक्ट्रॉन दिया कि क्लोरीन को भी अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का थ्योरी लुईस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने कहा था एलिमेंट becomes stable if it has octet of electron in its valence shell. अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल होगा। एंड for becoming stable, to attain stable electronic configuration, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम प्लस बदल जाता है और सोडियम प्लस का हो जाता है 2,8 और क्लोरीन बदल जाता है 2,8 क्लोरीन माइनस। और सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस दोनों के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। ये नेचर का थ्योरी है कि पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है। सो सोडियम प्लस बन गया और क्लोरीन माइनस बन गया। एंड फॉर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। ड्यू टू द बोथ चार्ज ऑन सोडियम एंड क्लोरीन देयर इज अ फोर्स, देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एंड दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज आयनिक बाउंड। So ionic bond is basically an attraction force, a force of electrostatic attraction जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। So it is a type of force। आयनिक बॉन्ड के बारे में समझ आ गया। आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण बनता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे यहाँ सोडियम वो अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और तो क्लोरीन क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन लिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसीलिए दिया बिकॉज सोडियम इज अ मेटल एंड मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। Why chlorine accept electron? Because chlorine is a non-metal and non-metal has a universal tendency to attract some electron. So there is a bond between sodium plus and chlorine minus, and this type of bond is known as ionic bond. So up to now we have clarified all the concepts of ionic bond. Now let us take an example of MgCl2. So let us tell what is the atomic number of magnesium. The atomic number of magnesium is 12. एलिमेंट्री स्कूल Its electronic configuration is 2, 8 and 2. उसमें तुम लोग का इंग्लिश साइंस में हो गया है। What is the atomic number of chlorine? The atomic number of chlorine is 17. 287. हाँ, So यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मैग्नीशियम के आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब 2 मैग्नीशियम और 1 क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम आएगा। एक मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देगा 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा मैग्नीशियम इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 अलग अलग मैग्नीशियम से। एक मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया। सो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है सोडियम की तरह। तो मैग्नीशियम क्या हुआ, कैटायन। कैटायन इज एन आयन व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लिया। तो दोनों के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आ गया और प्लस एंड माइनस आर द यूनिवर्सल अट्रैक्टर्स। ऑलवेज यूनिवर्स का ऐसा फेनोमेना है कि प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे भी एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा एंड दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज आयनिक बाउंड. So this is all about the concept of ionic bond. Ionic bond. Now let us take some example and let us write some notes about ionic bond. An ionic bond is always formed between cation and anion. In the formation of ionic bond, the sharing of electron take place. One atom gives its electron, another atom takes its electron. The atom which gives its electron is a metal, while the atom which takes
free electron is a non-metal. Ionic bond is always formed between metals and non-metals. So this is all about ionic bond. In the later class we will discuss coordinate bound, covalent bound, and the type of bond which a carbon can form. So thank you.